the portion, mostly whatever is needed to cater for those cracking those entrance exam have been taught to you all. And I'm going to teach you with a very basic thing, and I would like to let you know how these things function, because I've gone through your previous year question. I'm talking about CLAT. I've gone through previous question, and what I get to see in English is there are 5 passages which are asked, and each passage carries 5 questions. And they're not very tough, let me tell you. If you practice, I think within 1.5 months you will be very much expert. And practice does a lot of play a lot of big role. Also, what research says, because बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं, and what research says कि जितने भी बच्चे जिन्होंने चाहे IIT हो, IIM हो, या जो भी एग्जाम क्रैक किया है, और उनके ऊपर स्टडीज की गई है कि what makes them crack the entrance, what is the golden mantra for them. So they have found कि अगर जो लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, नोइंग डिस्पाइट नोइंग के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन सिलेबस है, अगर वो जितने भी क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनको ज्यादा एज मिला है. दे हैव एन अपर हैंड, दे आल्सो हैव गॉट एन एडवांटेज, एंड दे फॉर देम इट हैज बिकम ईजियर टू कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट्स टू क्रैक द एंट्रेंस. सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन as much as you can, this will help you. Look, you also have to study vocabulary, you also have to study one word substitution. Let me tell you, there are trillions, and I would be yeah, it sounds very low to say just trillion. There are a lot of trillions vocabulary in English language, and the kind of passage would be asked in the examination, there are a lot of possibilities कि they would be 5 to 6 or 10 vocabularies you don't know, and the same vocabulary will be asked for synonym, antonym, or the same vocabulary will be asked you to unpack with the given options. So वो सब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जो वोकैबुलरी हमें आता ही नहीं और उसी का. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आजू बाजू के जो सेंटेंसेज हैं जो पहले लिखा गया वो हमें हेल्प कर सकता है, वो कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे मीनिंग हमें बता सकता है. ठीक है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू फॉर द लिटरल मीनिंग. इफ आई डोंट नो द वर्ड, इफ आई डोंट नो द वर्ड बॉदर, लेट्स से, ठीक है, एंड दे हैव यूज्ड द वर्ड बॉदर इन अ पैसेज, एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ बॉदर इज बीइंग यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. सो वी हैव टू गो बाय द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट हेल्प्स अ लॉट. So I'm a student of English linguistics, where these things are taught a lot. So what we call in our language pragmatics. If I say to someone the door is behind you, so I'm not just telling him where the door is, I'm not indicating him, I'm also asking him to go out. ठीक है, तो contextualization helps us to understand the meaning, and that is why the topic I have chosen, and I would like to go with, I have to choose pencil first. Oh, it's too no, I'm not. Can you just help me a bit? This one, no? Yeah. I'm not. I'm pursuing PhD. All right. Let me tell you. What I thought कि the video is getting recorded to discuss all those things, but I can. Let me tell you, I have done my master's in English linguistics. So linguistics, if you are aware of the word, it's a language studies, and it's not about learning languages. It's about how a language works. Like a lot of students, a lot of my friends, if I go to different university, they ask linguistics, so you must be learning many languages, and I say no, it's not that. So there's a difference between knowing how to drive a car and how a car works. So we understand how language works. How language works in sense we all speak different English. Also we all speak different Hindi as well. My Hindi will be different from what my father speaks. So why does it, what difference does it make? A rickshaw wale speaks different Hindi, though his Hindi is also very understandable. So that is why. Even gender wise, female speaks differently, male speaks differently, so such things. So it begins from phonetics, from sounds to the meaning, phonetics, and then phonology, then word, morphology, syntax, semantics, so such things. So my PhD into that. So linguistics from IFLU, which is an English and Foreign Languages University, and Lucknow has a regional campus of that university. So the central campus is in Hyderabad. So no, I'm studying here. Yeah, actually since 1979, the regional campus of Lucknow has been established. Earlier it was in Hazratganj only. Later on it was relocated to Ashiana. Somewhere. Yeah. So what I'm going to do is I'm going to make it a very engaging and interesting class. So you all have to just listen to me, also do some kind of activity in terms of question that is being asked, CUT or CLAT exams. So how many of you are preparing for CLAT? And they are for CUT. All right. So I'm just going to write 4 sentences, and I'm going to underline words. I'm going to ask you which parts of speech each word denotes. I think the thickness should be very less. It's a lot.
This is health. So the first sentence is swimming is a good exercise. Second one is I saw him swimming across the river. I have deliberately used one word. And just to make you understand something, if you already know, we'll move on to the next thing. He is swimming in the river. No smoking. Is smoking injurious to health? So you have to let me know the parts of speech of the underlined words. Gerund. Yeah. And the next one is? Ha, you all are free and please contribute in the actively participate. Ha, all right. So let's begin with the first one. ठीक है, swimming is a good exercise. You're saying it is gerund. Would you like to unpack this word more? What is gerund in simpler words? So ing has also like verb form, noun form. Okay. Yeah, you're right in some sense. Anyone has like disagreement with what he says. Okay, no, this is something else. As you were saying, it is what? Verb. You also agree. So, okay. Why do you think this is verb? What is the function of the verb? Yeah. And is swimming who is doing that action over here? Nobody. Exactly. So I'll tell you in short, today what we are going to understand functional grammar. में हम ये देखने वाले हैं बचपन से तो हमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ाया जाता है क्लैट में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है बट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन टॉट इन स्कूल यहाँ पे चीजें ये होने वाली है कि हमें नाउन का डेफिनेशन बता दिया गया हमें वर्ब का लेकिन हम वो फंक्शन कैसे करता है कैसे एक वर्ड अलग अलग तरीके से फंक्शन कर सकता है तो वो जो नॉनसेंस है अगर वो हम समझ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस फंक्शनल ग्रामर आई एम गोना टीच यू नाउन बट आई एम नॉट गोना टीच यू व्हाट टाइप्स ऑफ नाउन डू वी हैव आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दीस थिंग्स नॉट आस्क एट ऑल आपसे वो फंक्शन पूछेंगे हाउ प्रॉपर नाउन फंक्शन हाउ डज प्रॉपर नाउन फंक्शन डिफरेंट देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं कैसे एक ही वर्ड वर्ब की भी तरह काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और नाउन की भी तरह काम कर रहा है तो अगर हम इसे वर्ब कहते हैं तो इंग्लिश में इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि वर्ब डिनोट्स एक्शन और ये भी डेफिनेशन गलत है ठीक है लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम समझ लेते हैं एक्शन क्योंकि आई नो यू इफ आई से आई नो यू सो इज देयर एनी एक्शन हैपनिंग No, so ये जो definition है all action words are called verb. This needs to be revised because this very definition is itself wrong. Over here, see this is what verb. इतना तो हमें basic understanding है ठीक है और इंग्लिश में verb agrees with subject. इंग्लिश में हमारा जो पैटर्न है SVO का है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जबकि हिंदी में ये थोड़ा अलग हो जाता है इंग्लिश हिंदी में हो हमारा क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इंग्लिश में वर्ब बीच में आता है हिंदी में वर्ब लास्ट में आता है अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से काम करता है तो स्विमिंग इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट लेकिन एक्चुअली अगर इसकी शक्ल देखी जाए इट लुक्स लाइक अ वर्ब so verb acting as a subject and whatever is subject in English it is either a noun or a pronoun very simple इससे ज्यादा कुछ है नहीं period full stop so whenever you get to see a subject बस यही दिमाग में लाना या तो ये noun है या तो वो pronoun इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता swimming is what swimming is either noun or pronoun and then now we left with two options noun or pronoun so pronoun why not pronoun why noun only because pronoun is a closed class pronoun में जो words है वो fixed है नए words अब include नहीं कर सकते हैं they are called closed category but noun में everyday new things are invented new words you know नए नए शब्द चीज़ों को नाम दी जा रही है तो noun open class है उसमें हम रोज नए word डाल सकते हैं तो this is subject and this is noun हाँ अब आते हैं आपकी बात पे तो ये इसको gerund क्यों कह रहे हैं तो दिख तो रहा है ये verb की तरह लेकिन इसका काम क्या है noun सब्जेक्ट का तो वैसा वर्ब जो नाउन की तरह काम करता है वी कॉल इट वर्ब मैं रफली अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई लेट यू नोट इन डिटेल वर्बल नाउन व्हाई वर्बल नाउन वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन इट इज एक्चुअली अ वर्ब बट एक्टिंग एज अ नाउन ओवर हियर एंड देन वी कॉल इट gerund या यू आर एब्सोल्युटली राइट सो दिस इज अ gerund ओके लेट्स डू विद दिस इज आर्टिकल आर्टिकल का तो ऑक्सीजन है नाउन कहीं भी आर्टिकल दिख गया देयर हैज टू बी अ नाउन आर्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ नाउन आर्टिकल्स ऑक्सीजन इज नाउन सो इतना हमें समझ है कि गुड इज एडजेक्टिव बट वी ऑल नो दिस इज एन आर्टिकल तो देयर हैज टू बी नाउन तो एक्सरसाइज दिस इज अ नाउन एंड इफ दिस इज अ नाउन दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज good exercise so talking about something that talks about noun becomes adjective something that talks about pronoun becomes adjective is it readable हाँ मुझे लग रहा है ये बहुत मोटा जा रहा है जिसकी वजह से समझ में आ रहा है ना हाँ all right so noun adjective we all know इतना ही आपको जानना है you don't have to know demonstrative adjective and possessive adjectives you don't have to like bombard yourself with lots of knowledge now coming to the third one I'll come to the second one later but I'll come to the third one he is swimming he is a person name of a person doing some kind of activity and now it is acting as a verb this is acting as a verb this is we all say this is helping verb this is main verb and a lot of things so he is swimming in the river you understanding it now just have a wild guess and let me know I saw him swimming across the river what is the parts of speech of that word swimming so you don't have to guess you just have to look at the neighboring birds आसपास के शब्दों को देखो whatever you say justify yourself
यू आर सेइंग इट इज नाउन, verb. Okay, sorry, adverb. Anybody else? All right. So हाँ ठीक है, हम जस्ट इरेज द फर्स्ट सेंटेंस ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बन जाए. हाँ, ये पूरा सर्कल बंद होगा तभी ये इरेज होगा ना. अच्छा, थोड़ा भी स्पेस बन जाएगा, इट विल बी इजी फॉर मी. या इज इट ओके? द थर्ड वन. नाउ अभी अभी जितना भी हमने समझा है उसी को यूज करते हैं, उसी थ्योरी को हम यूज करेंगे. इरेजर टू. हाँ, अभी भी ये सेल. ऑल राइट. सो सबसे बेसिक चीज, बस कुछ नहीं आता हमें, बस हमने अब ये सीखा कि सब्जेक्ट होगा तो या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. दैट्स ऑल. कहीं भी हम सब्जेक्ट देख लिया. नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाला कहलाता है एडवर्ब. बस इससे ज्यादा हमें नहीं आता. अब यहाँ देखते हैं, आई सॉ दिस इज व्हाट. ठीक है, बड़ा इजी टारगेट हमने चूज कर लिया. चलो हमें नहीं पता एक पार्ट्स ऑफ स्पीच किया तो हमने वो. तो वर्ब है तो हमें समझ में आ गया कि ये तो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इंग्लिश में वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में. सो दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट. कैन वी से आई सॉ हिम? इसकी जगह हम कोई किसी का नाम भी दे सकते हैं. ठीक है, तो दिस कुड बी ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट की भी बात करें, ठीक है, इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. तो इतना हमें समझ में आ गया ये ऑब्जेक्ट है, तो या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा. इज इट क्लियर? ठीक है, आई सॉ हिम स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, विच मीन्स हम या नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करें. अभी हम श्योर भी नहीं है, जबकि वी ऑल नो दिस इज प्रोनाउन. ठीक है, फिर भी बहुत सिंपल कर सकते हैं. सो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. तो yeah, this is adjective, or we will call it verbal adjective, and we call it present participle. So verb acting adjective will be called participle. और दो verb adjective की तरह काम करते हैं बेसिकली. एक verb का fourth form भी है और एक verb का third form भी है. तो ये दोनों adjective की तरह काम करते हैं. पहले वाले को हम लोग participle कहते हैं, present participle. दूसरे वाले को हम लोग past participle कहते हैं. So did you understand? तो how easy it has become? ठीक है, तो ऐसे ही तो अब वो सारा जो थ्योरी है, टाइप्स, काइंड्स, ये सब जरूरत भी नहीं जाने की. सो आई सॉ हिम स्विमिंग अक्रॉस द रिवर. नाउ कमिंग बैक टू फोर्थ एंड फिफ्थ. फोर्थ नंबर, नो स्मोकिंग. बहुत बार हमें देखने को मिलता है. ओके, यू आर सेइंग दिस इज एडजेक्टिव. ऑल राइट. एनीबॉडी एल्स? ओके, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? स्मोकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? इज स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ? ऑल राइट. सो थोड़ा सा आसान कर देते हैं. एक वर्ड होता है नो और एक वर्ड होता है नॉट. ठीक है, नो और नॉट में डिफरेंस क्या है आप यहाँ पे समझ लें. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक्टिविटी के बारे में बोला जा रहा है. नो स्मोकिंग, यानी दिस एक्टिविटी इज नॉट अलाउड हियर. ठीक है, यू आर आस्क नॉट टू डू दिस. नॉट टू डू व्हाट? एन एक्टिविटी. और ये उस एक्टिविटी का नाम है. स्मोकिंग की जगह कुछ और भी लिख सकते थे. नो फोटोग्राफी. ठीक है, और भी चीजें. तो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी यानी कोई काम, और उस काम को हम लोग नाउन कहेंगे ना. जैसे स्विमिंग एक एक्टिविटी थी ऊपर में, यहाँ पे कोई स्विमिंग कर रहा था किसी के बारे में, मैंने उसको तैरते हुए देखा. आई सॉ हिम स्विमिंग अक्रॉस द रिवर. ठीक है, तो दिस इज एक्टिंग एज अ नाउन. एंड स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ? क्वेश्चन मार्क. क्या स्मोक करना सेहत के लिए इंजूरियस है? धूम्रपान करना हानिकारक है? तो यहाँ पर कोई स्मोक कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है. ठीक है, इस यहाँ पे तो जनरली एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है. ठीक है, तो जब कोई काम कर रहा होगा उस काम को तो हम कहेंगे वो वर्ब है. जब हम उस एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे वो नाउन है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? और यहाँ देखो ना, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि इस क्या वर्ब, क्योंकि इंटरोगेटिव में वर्ब पहले आता है, और सब्जेक्ट है तो या तो नाउन है और या तो प्रोनाउन है. और चूंकि ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, स्मोकिंग तो नाउन हुआ ना. सो अभी हमने क्या समझा कि अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कुड ऑल्सो बी नाउन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कुड ऑल्सो बी एडजेक्टिव, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब तो है ही. लुक हाउ वर्सटाइल वर्ब इज. सो V4 नाउन की तरह भी काम कर सकता है, V4 एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, और V4 वर्ब है. अब कैसे पता चलेगा कब क्या है? तो नाउन होगा तो या तो वो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, और कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लाफिंग इज माय हॉबी, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, कुकिंग इज माय हॉबी, ईटिंग चॉकलेट बिफोर स्लीपिंग इज माय हैबिट. सच थिंग्स. सो यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी, ठीक है, और वो V4 की शक्ल में, वी विल कॉल इट नाउन. वी ऑल्सो कॉल इट जिरंड, टेक्निकल वर्ड. इन सिंपल वर्ड वी कॉल इट वर्बल नाउन. ठीक है, एडजेक्टिव. और ये तो उसकी ओरिजिनलिटी है. V4 तो वर्ब है ही. वर्ब कब होगा? जब ये मेन वर्ब की तरह काम, क्योंकि V4 हमेशा मेन वर्ब होगा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा. आर यू ऑल गेटिंग इट? सो नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन विद द फंडामेंटल्स. ठीक है, ये इरेज ऑल हो सकता है. क्लियर दिस? अच्छा, चलो, इट्स गुड. वो अभी भी सेलेक्टेड है क्या? सो आप इस चीज के ऊपर
ऑफ इंग्लिश। और इसी के बाद अभी हम लोग CUT और क्लैट दोनों का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और देखेंगे कैसे इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और वी ऑल्सो कॉल इट फंक्शनल ग्रामर। वाई फंक्शनल ग्रामर? बिकॉज व्हेन वी वर इन स्कूल हमें पढ़ा दिया गया नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एंड वी वर वेरी यंग, सो अभी हमें थोड़ा पुश करने की जरूरत है दिमाग को, एंड वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ ईच एंड एवरी वर्ड फंक्शंस इन रियलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन फंक्शनल ग्रामर। वी आर गोना अंडरस्टैंड हाउ ईच एंड एवरी वर्ड फंक्शंस। सो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, यू ऑलरेडी नो लॉट ऑफ थिंग्स, इट बिकम्स ईजियर। सो दो चीज़ें हैं, सबसे पहला हमारा नाउन है और दूसरा है हमारा प्रोनाउन, एंड आई एम नॉट गोना टीच यू ऑल दोज थिंग्स जो बोर करे या जो आपको ऑलरेडी पता और जो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, नॉट एट ऑल। नाउन और प्रोनाउन सिमिलैरिटीज क्या है नाउन और प्रोनाउन में? कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कभी भी सब्जेक्ट दिख जाए तो या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी दिख जाए या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा। वी ऑल नो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल इट डूअर, काम करने वाला ना। व्हेन वी ऐड ER और OR टू वर्ब इट बिकम्स टीच, टीचर, प्ले, प्लेयर, स्पीक, स्पीकर, राइट, राइटर, कंप्यूट, कंप्यूटर, ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेटर। सो व्हेनेवर यू कुड ऑल्सो लर्न दिस वे कि कभी भी किसी शब्द के लास्ट में ER या OR आता है वो नाउन है। ऐसे और छोटे मोटे चीज आई कीप लेटिंग यू नो। अगेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज व्हाट, रिसीवर। तो रिसीव व्हाट, अगर कोई भी काम हो रहा है, एक्शन, काम को वाला, व्हाट वी कॉल इन हिंदी करता, ठीक है, तो डूअर इज सब्जेक्ट और उस काम को वाला ऑब्जेक्ट। क्लियर? इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी सब्जेक्ट दिख जाए वो या तो नाउन है या प्रोनाउन, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आई डोंट हैव टू वरी कि कौन सा वाला नाउन है, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आते हैं प्रोनाउन में, ये भी की तरह काम करता है, ये भी। तो वी ऑलरेडी हैव नाउन जो काम कर सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, तो प्रोनाउन की जरूरत क्या है, ठीक है। सो कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन? वो मत बोलना कि नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं रिपीटेटिव, वी ऑल नो दिस। आप इसको तोड़कर देखें, दिस इज प्रो प्लस नाउन, एंड प्रो वर्ड इज वेरी कॉमन दीज डेज, है ना। आई हैव Oppo F17 Pro, तो प्रो मतलब अब बेटा वर्जन। आजकल कोई भी फोन आता है मार्केट में फिर उसका एक प्रो वर्जन आ जाता है, तो प्रो मतलब उसका बेटा। और प्रो को सिंपल लैंग्वेज डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, भाई आई एम प्रो एट इट, ठीक है। तो प्रो एट इट विच मीन्स आई एम वेरी गुड एट इट और सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हाँ, तो डिफरेंस क्या है? तो पहले एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, फिर विल कम टू डिफरेंस। द फर्स्ट इज द प्यून rang the bell, ठीक है। This is what? Verb. This is verb, which means an action. Who did the action? Pune, काम करने वाला, doer. This is what? Subject. हाँ, बेल को बजाना, अगर इलेक्ट्रिक बेल भी है तो उसने स्विच किया, अपना एक्शन उसमें ट्रांसफर किया, रिसीव किया इसने, दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया? नाउन हो गया, और ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। आर्टिकल है ना इसके पहले, ऑलवेज याद रखना, हमेशा इंग्लिश में आर्टिकल, बहुत से लैंग्वेज में आर्टिकल एब्सेंट है, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज में। इंग्लिश में आर्टिकल्स होते भी, आई ऑल्सो नो टू स्पीक रशियन एज वेल बिकॉज आई हैव लर्नड इन माय मास्टर्स, सो रशियन में दिस नो आर्टिकल। हिंदी में भी जो डेफिनेट आर्टिकल इज मिसिंग, बट इंग्लिश में हमें याद क्या रखना है कि जब भी आर्टिकल हमें दिख जाए उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। एग्जैक्ट उसके बाद भी आ सकता है या थोड़ी दूर बाद भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला द प्यून, अब प्यून के बारे में कुछ तारीफ करनी होगी, ठीक है, तो द टॉल प्यून, तो द और प्यून के बीच में आ गया, और भी चीजें लगानी होगी तो हाँ, द ओल्ड टॉल प्यून, अगेन बेल, यू आर गेटिंग इट। सेकंड, इफ आई से he, anyway, he helped me, so you could see he and me, these are what? Pronoun, and both are subject and object. अब हम आते हैं अपने सबसे उत्तर वाले सवाल पे, फिर डिफरेंस क्या है प्रोनाउन में और नाउन में। सो सी दिस, you don't have to write each and everything, एक दो लाइन लिख लिया बहुत है। अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से राहुल, रवि, कोई भी नाम लिख, राहुल taught me, एंड मैंने लिखा I taught, तो मैं अभी दो क्वेश्चन भी देने वाला हूं। सी दिस इज राहुल एंड दिस इज ऑल्सो राहुल। राहुल ओवर हियर इज व्हाट? सब्जेक्ट, एंड राहुल ओवर हियर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। दिस इज मी एंड दिस इज आई ओवर हियर इज व्हाट? सब्जेक्ट, एंड मी ओवर हियर इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। क्रॉस तरीके से देखो, ये वाला नाउन है और ये भी नाउन है, और ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जब नाउन को हम लोग सब्जेक्ट के केस पे रखते हैं और ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस, वी आल्सो कॉल इट नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, है ना, वो चेंज नहीं होता है।
वो जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में अपने रंग बदल लेता है, ऑब्जेक्टिव केस में वो कुछ और हो जाता है, पॉसेसिव केस में वो माई हो जाता है। यू आर गेटिंग इट? तो प्रोनाउन के साथ हमें उसका केस भी याद रखना पड़ता है, जबकि नाउन में चाहो आप उसको सब्जेक्टिव, इनफैक्ट हम पॉसेसिव केस में भी यूज करेंगे ना, तो राहुल के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, राहुल्स। लेकिन अगर आई का पॉसेसिव केस हम यूज करना होगा तो माई यूज करना होगा। तो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी दैट प्रोनाउन हैज, इट चेंजेस। सब्जेक्ट पोजीशन अलग तरीके से दिखेगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे अलग तरीके से दिखेगा, और पॉसेसिव पे। अगर मैं लिखता हूं पहला सेंटेंस, ये क्वेश्चन है, it is I or me who helped you during the exam. This chair is taking space. And second, let Rahul and I or me enter the room. You have to tell me आई होगा या मी होगा, और वहां पे आई होगा या मी होगा। हाँ, हमें चूज करना, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये है, ठीक है। और यहाँ पे भी आई और मी। आई एम नॉट सेइंग यू राइट और रॉन्ग, ऑल राइट। यहाँ पे भी, एंड ऑल ऑफ यू, आर यू इन क्लास? यू सीम टू बी आउट कहीं और, मुझे लगा ऐसा। ओके देखो कितना बेसिक सवाल है ये, और ये फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है प्रोनाउन के, तो हम बड़ा सस्ते में ले लेते हैं प्रोनाउन को, और सिर्फ हम उसके डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल में पढ़े रहते हैं। या ऑल राइट, कमिंग बैक टू दिस इज गिविंग मी अ बिट ट्रबल। इट इज आई और मी, वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। पहले यहाँ देखो, ये वर्ब है ना, ठीक है। अभी तो हमें इतना समझ में आ गया ये वर्ब है, तो ये वर्ब है तो जरूर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो भैया ये तो प्रोनाउन है, ठीक है। अब सब्जेक्ट है तो दिस इज वर्ब, वर्ब तो ये तो सब्जेक्ट हो गया ना, हाँ उल्टा बोलिए लगता मैंने, ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन? तो हु क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन तो किसी का नाम होता है ना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मुझे लगा यू नो दिस। अब देखो इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, हमने एक नया वर्ड दे दिया, आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव क्लॉज में आएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से तो समझ सकते हैं कि अच्छा हेल्प वर्ब है और उसके बगल, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ तो प्रोनाउन, तो विच मीन से प्रोनाउन है। कौन सा वाला प्रोनाउन तो नहीं भी पता है तो चलेगा, इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे इट इज, ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, इट इज, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बाद है सब्जेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी एग्जाम के वक्त मदद की, तो इट इज आई, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, मी नहीं होगा, इट इज आई। और स्पोकन वाइज बहुत बार हम बोल देते हैं इट इज मी, सो स्पोकन इंग्लिश में इट इज करेक्ट, ठीक है। ही इज बेटर देन मी बोल देते हैं ना, विच इज करेक्ट, लेकिन ग्रामेटिकल इज रॉन्ग, ठीक है। तो इट इज आई, ओके। टेल मी दिस वन, और मैं जब तक थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, ये रेजर कहाँ गया? हाँ चलो, इजी, लेट, एक सेकेंड, लेट आई और मी डू दिस, उसको करने से पहले ये कर लेते हैं। नहीं, जो स्पोकन इंग्लिश की छोड़ो, ग्रामेटिकली बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एवरीबॉडी नोस कि मी इज द राइट आंसर, आई नहीं, जबकि ये सही है, लेट मी डू दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे तो वर्ब आया, और वर्ब के पहले तो हमें सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, लेट मी डू दिस, लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी रन, मुझे ये करना, तो सेकंड पर्सन को कह रहे हो, ठीक है। और ये सेंटेंस शुरू भी तो हो रहा है वर्ब से, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, कम इन, गो आउट, सिट डाउन, स्टैंड अप, इसका मतलब है उसका सब्जेक्ट है यू। जब हम सेकंड पर्सन को एड्रेस करते हैं, जब हम सामने वाले कहते हैं, सो हम यू जो है वो अंडरस्टूड होता है, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब हम नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोला जा रहा है, यू लेट मी डू दिस, तुम मुझे ये काम करने दो, परमिशन मांग रहे हो, यू आर आस्किंग समवन परमिट यू टू डू दिस, अलाउ मी टू डू दिस। सो जब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, तो इसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। और जब आप बुक्स में जाएंगे तो इतना रटवा देते हैं कि लेट के बाद जो भी केस आएगा प्रोनाउन का, वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लेट के बाद कभी भी, इसमें रटने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आप किसी को कह रहे हो, और वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एक और सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, यू आर गेटिंग इट, लेट मी डू दिस। अब यहाँ देखो, लेट राहुल, तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि लेट के बाद कौन सा केस आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो राहुल का कौन सा केस है, राहुल सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। तो राहुल क्या हो गया,
ऑब्जेक्ट, और ये एंड है कंजंक्शन, और कंजंक्शन से ज्यादा वफादार कुछ नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। इसने अपने पहले ऑब्जेक्ट लिया है तो अपने बाद भी ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, मी, आई इज रॉन्ग, लेट राहुल एंड मी इंटर द रूम। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, फंक्शन हम पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउन फंक्शन करता है, ऐसे नाउन फंक्शन करना, और बहुत ज्यादा रूल्स भी नहीं है, ठीक है। यू आर गेटिंग इट। मैं 2 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ ओरली, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन, अदरवाइज आई विल इरेज इट। अच्छा, लेट मी बी ओवर हियर। और आपने ऑलरेडी नाउन और प्रोनाउन पहले पढ़ा है, आई मीन अंडरस्टैंडिंग तो होगी, सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस। समझ रहे हैं ना आप? फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इवन इफ यू थिंक ये बड़ा अनइम्पोर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वट एवर आई टीच टुडे, if you have any kind of doubt, I think thank God you're allowed with to carry your mobile phone. Please Google it. I stand to be corrected. ठीक है, I have no issue. बोलने में अजीब लग रहा है बट यही सही है। और आप चाहो तो अब तो AI का टाइम है, मेटा डिस्कोर्स है, आस्क देम, दे लेट यू नो द आंसर। और मुझे लगता है वो ज़्यादातर सही आंसर बताते हैं। उसके पीछे भी हमारे लिंग्विस्टिक्स वाले लगे रहते, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, जिसमें मशीन लर्निंग होती है। मशीन को कैसे सिखाएंगे हम वर्ड्स, मशीन डिफरेंशिएट करता है, यू आर एंग्री और नॉट एंग्री, एक वर्ड के कैसे अलग अलग मतलब है, तो दैट कम्स अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, लेट राहुल एंड मी इंटर द रूम, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये पीछे समझाने का मतलब ये था कि पहले तो आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमने ये सीखा कि नाउन जब सब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है तो लुक सिमिलर, एक जैसा ही दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड हमने बात किया यहाँ पर कि प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आपको 1-2 क्वेश्चन दिखा दूंगा जहां पर लोगों ने यही उलझाकर पूछ लिया है, बेसिक क्वेश्चन। अभी मैं वो लिखने वाला हूं, ठीक है। जैसे मैं यहीं पर वो क्वेश्चन लिख देता हूं, हाँ, ही नोज यू बेटर देन आई और मी, और ही तो देखो मैं समझा देता हूं पहले आपको। ही नोज यू बेटर देन आई और मी, ये ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, नोज हो गया हमारा वर्ब, यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही नोज यू बेटर देन, अब ये देन जो है ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अब हमें चूज करना है आई और मी, तो देन के पहले क्या आ रहा है, यू आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, ऑब्जेक्ट से होगी। ही नोज यू बेटर देन मी, ठीक है, ही नोज यू, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहां पर देखें, ही रन्स फास्टर, ही है सब्जेक्ट और यहाँ पे देन, तो यहाँ पर केवल 2 लोगों के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है। तो अब ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आई होगा, ठीक है, क्योंकि वो कर रहा है। भले मैंने आपको पहले बोल दिया ही रन्स फास्टर देन मी और ही इज बेटर देन मी बोल देते हैं, बट नो, आई। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं, ही रन्स फास्टर देन आई रन, ठीक है, ही रन्स फास्टर देन आई रन, ठीक है। ही राइट्स फास्टर देन आई राइट, तो मी राइट तो नहीं होगा ना, आई राइट, क्योंकि इसके बाद हम एक और वर्ब डाल सकते हैं, इसीलिए वो सब्जेक्ट होगा। सो ये समझ लेना है कि प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन पे अलग अलग तरीके से काम करता है, और इसी चीज के ऊपर वो क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजों पे? नाउ वी वुड मूव टू kind of verb, yeah, noun and pronoun, and we'll move to verb a bit, just giving a basic understanding. I'm clearing all. No, it's better if I talk about first adjective and adverb. It will give you better understanding. If I talk about adjective, in simple word, we would say adjective is a describing word. Describing word, which means जो noun और pronoun के बारे में बात करता है उसको describe करता है. This is N. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. वी ऑल्सो कॉल इट इन अदर वर्ड्स. और डेफिनेशन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वर्ड विच गिव्स अस एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन. और नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा. सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी अगर हम एक्स्ट्रा जानकारी दे दे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे, विल कॉल इट एडजेक्टिव. पहला.
अगर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं शी इज, I'll write very basic and simple sentence and then I'll give you question. Oh shit. See this beautiful is what? Adjective. ठीक है, ये किसके लिए आया? शी के लिए आया. शी क्या है? सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन है. ठीक है, और एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके बारे में बात करता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में. यू नो दिस, यू डोंट हैव टू इवन राइट इट, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड. शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. जहां पे भी हमें आर्टिकल दिख जाए, हाँ, इट मीन्स ये नाउन हो गया. अब यहाँ पे शी के बारे में बात ना करके किसके बारे में? इस नाउन के बारे में बात हो रही, गर्ल. ठीक है, सो अगेन दिस इज व्हाट? एडजेक्टिव. और ये गर्ल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो या तो सब्जेक्ट के बारे में बात होगी या तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी. Either it is noun, yeah, or it is a pronoun. This is okay. If I write like this, he is honest and he is an honest. Which one is correct? Okay. Anybody else? No, अभी person पे नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ an लगा के छोड़ दे रहे हैं. He is an honest. बस यही है, person भी नहीं है. तो यू थिंक फर्स्ट वन, आप पार्टिसिपेट करें. लुक, इट्स नॉट अ केबीसी. इवन इफ यू गो रॉन्ग यू विल बी पनिश्ड. ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट से क्या होता है? योर आर्टिकुलेटरी और दिस ऑर्गन्स कीप फंक्शनिंग. ठीक है, हम सब डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम यस और नो पे आ गए हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट. अब कैसे? लुक, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और ऑब्वियसली ही के लिए आ रहा है. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट आइदर नाउन और इट टॉक्स अबाउट प्रोनाउन. अब एन ऑनेस्ट गलत कैसे हो गया? तो एन हमारा क्या है? आर्टिकल है, और मैंने आर्टिकल की एग्जिस्टेंस ही तब है जब उसके साथ नाउन लगा रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे नाउन है क्या? नहीं है. फिर आप कहेंगे कि ऑनेस्ट तो यहाँ पर भी है, और ऑनेस्ट तो आया है इस वॉवल साउंड के लिए ना. ध्यान से सुना, ऑनेस्ट तो आया इस वॉवल साउंड के लिए. ओ ऑनेस्ट, इट इज लाइक दिस. वॉवल तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे, वहां पे भी ऑनेस्ट नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे भी ऑनेस्ट नहीं पढ़ रहे, बट यहाँ पे हमने एन नहीं लगाया है. ठीक है, और फिर भी ये सही हो गया है, और यहाँ पर हमने एन लगाया, और तब तो और सही होना चाहिए. फिर ये गलत क्यों गया? क्यों? क्योंकि एन एक आर्टिकल के अंदर आता है. एन आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद नाउन का आना अनिवार्य, कंपल्सरी है, उसका ऑक्सीजन है वो. तो अगर आप नाउन लगाओगे नहीं तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया. ही इज एन ऑनेस्ट व्हाट? ही इज एन ऑनेस्ट. तो दूसरे लॉजिकली तरीके से देखो, एक तो यहाँ पे नाउन लगाना होगा, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट बॉय. ठीक है, दूसरा लॉजिकल क्या है? ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन के लिए आता है. तो यहाँ पे हमें एक नाउन लगाने की जरूरत है ना, वरना किसके बारे में बात कर रहा है कैसे पता चलेगा? यहाँ देखो ना, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसके बारे में बात हुआ ना. और यहाँ पर देखो इधर से, तो या तो ये पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को भी डिस्कस कर सकता है, और ठीक इसके बाद जो आया उसके बारे में भी बात कर सकता है. ऑक्सीजन के बाद आना जरूरी है, अगर नहीं आएगा. दूसरा लॉजिकली देखो ना, एडजेक्टिव्स कम्स व्हाट? नाउन और प्रोनाउन. इज देयर एनी नाउन आफ्टर दिस एडजेक्टिव और प्रोनाउन? नो. सो इट डजंट मेक सेंस, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, yeah. Now we'll talk about another form of adjective. Shit. Oh my god. Yeah. तो अब हम देखेंगे कि कैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. V4 आल्सो एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है. उसको पहले समझेंगे और एग्जांपल देखेंगे. Shit, yaar. Every time I keep forgetting it. Yeah. We call it present participle. Or we call it past participle. देखो सबसे पहला स्टेटमेंट, I saw a running camel. There is a broken chair. ठीक है, look at this word running and look at this word broken. ठीक है, and both the sentence carry article. So if there's an article, this is what? हाँ, this is noun, camel. ठीक है, camel and chair both are noun, क्योंकि आर्टिकल आया है. ठीक है, और इस कैमल के बारे में बात करा. कैसा कैमल? दौड़ता हुआ कैमल. मैंने एक दौड़ते हुए ऊंट को देखा. I saw a running camel. तो कैमल इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, क्योंकि नाउन के बारे में बात कर रहा है ना.
और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। देयर इज अ ब्रोकन चेयर, कमरे में एक टूटी हुई चेयर है, ठीक है, तो कैसी चेयर है? ब्रोकन चेयर। नाउन के बारे में हमें बात बता रहा है, तो नाउन के बारे में बात बता रहा है, तो वो V3 है तो वो वर्ब की शक्ल में, लेकिन एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, इसीलिए विल कॉल दिस वर्बल एडजेक्टिव। और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आपने बहुत बार सुना होगा लाइक डाइनिंग टेबल, ठीक है, तो लुक एट द वर्ड डाइनिंग, व्हाट काइंड ऑफ टेबल? डाइनिंग टेबल। पंचिंग बैग, स्विमिंग पूल, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में अगर इस वर्ड को देखा जाए तो पूल क्या नाउन है, और उसके बारे में हमें कैसा पूल? स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग तो V4 हुआ ना, लेकिन एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, इस तरीके से। द बर्निंग ट्रेन, अगर वो फिल्म है बॉलीवुड की, तो द बर्निंग ट्रेन, ट्रेन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जलता हुआ ट्रेन, सो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। और प्रेजेंट मतलब वो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और पास्ट इट इज डन। यू आर गेटिंग इट? ये आपको पैसेज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और वहां पे अभी हम लोग कुछ पैसेज भी करेंगे, तो यू विल गेट टू सी हाउ V3 एंड V4 becomes an adjective and it help us understand the meaning. Is it clear? ठीक है। सेकंड, उसके बाद हम लोग LY वर्ड्स पे जाएंगे, और उसके बाद विल डायरेक्टली जंप टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सी, ठीक है, क्या हो गया? यू हैव समथिंग टू शो रिगार्डिंग दिस, यू कुड, आई डोंट माइंड डिस्कसिंग। तो अगर हम एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब के बारे में बात करें, तो ये भी हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया इस क्लास के शुरू में कि वी आर डिस्कसिंग जस्ट द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी, कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो एडवर्ब को लेके एक हमारे दिमाग में नोशन है कि जितने भी LY वाले वर्ड होते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, बट विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, चारों को समराइज करके। एडवर्ब या तो वर्ब के बारे में बात करता है, या तो एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, या फिर ये अनदर एडवर्ब के बारे में बात करता है। जैसे नाउन अपना स्टैंड खुद नहीं ले सकता है, और ना ही प्रोनाउन, वो अपने बारे में एक्स्ट्रा बातें नहीं कर सकता है, अपनी क्वालिटी नहीं बता सकता, तो उसके लिए एडजेक्टिव साहब है। और एडजेक्टिव के बारे में अगर किसी को बात करना होगा तो वी हैव एडवर्ब, और एडवर्ब के बारे में किसी को बात करना होगा तो एडवर्ब खुद कर लेता है, ठीक है, अनदर एडवर्ब। आई एम जस्ट राइटिंग एग्जांपल्स। इफ आई राइट लाइक दिस, ही रन्स slowly, and if I write like this, is it visible? हाँ, he runs slowly, he is really intelligent. And then he runs quite slowly. Look at these three words: slowly, slowly, and really. So he runs slowly. We have a subject, he. क्या कहेंगे इसको? Noun. This is what? Verb, main verb. And किसके बारे में बात हो रहा है? He के बारे में या run के बारे में? तो अगर he के बारे में होता तो he slow बोल देते ना? वो दौड़ता है, slowly को डालो, ठीक है, अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Just remove slowly, he runs. मतलब he does an activity, he performs an action, and that action is called running. So the manner of that, how is person, he, slowly, ठीक है, तो वर्ब के बारे में बात हो रहा है, दिस विल बिकम व्हाट? एडवर्ब, ठीक है। अब दूसरा, ही इज रियली इंटेलिजेंट, वी ऑल नो इंटेलिजेंट इज व्हाट? एडजेक्टिव। किसकी बात कर रहा है वो? ही के बारे में। ही इज व्हाट? सब्जेक्ट। एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट आइदर नाउन और प्रोनाउन, और इन दिस सेंटेंस वी हैव प्रोनाउन, दैट इज ही। और रियली हटा दो, ही इज इंटेलिजेंट, एंड देन वी ऐड ही इज रियली इंटेलिजेंट, वो सचमुच इंटेलिजेंट है। एडजेक्टिव के बारे में बातें बता रहा है, विच इज एडवर्ब, और यहां पे क्या है? एडजेक्टिव। Tell me the third one. He runs quite slowly, and let me know the parts of speech of each and every word. He is what? Very good. हाँ, subject, pronoun. Runs is verb, slowly is adverb, हमने ऊपर से पढ़ लिया। अब एक तो वो धीरे धीरे दौड़ता है, उसमें भी हमने और डिग्री बताई उसकी कि धीरे धीरे में भी काफी धीरे। He runs quite slowly, ठीक है, तो this is adverb, और इस adverb के बारे में भी हम और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। This is what? An adverb. So adverb को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है MPTF, ठीक है। एडवर्ब टॉक्स अबाउट मैनर, कोई काम कैसे किया जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। स्लोली, ठीक है, फास्ट, ठीक है, उस तरीके से। प्लेस, प्लेस स्टैंड्स फॉर प्लेस, प्लेस मींस हियर, देयर, ये सारे। उसके बाद टाइम, टाइम में आता है टुडे, टुमारो, टुडे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी, कोई भी काम कितनी जल्दी या कितना स्लो होता है। ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, sorry for the verb, all these words. So MPTF, adverb, MPTF, generally यही चार से एग्जाम में वो सवाल पूछते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। और अब तो इतनी अनपैकिंग हो गई है कि कैसे काम करता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलो, आई एम जस्ट गिविंग यू वन क्वेश्चन, अ सेट ऑफ क्वेश्चन, दिस आई एम इरेजिंग दिस साइड।
हाँ इतना तो काफ़ी है. ओके सो वी हैव नोशन कि जितने भी एल वाई वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई लगा हुआ है तो या तो वो एडजेक्टिव है या तो वो एडवर्ब है. आओ चीज़ें यहाँ पे हम सीख लेते हैं. सबसे पहला नाउन. जितने भी वर्ड जिसके लास्ट में आपको आयोन लगा रहे, टी आयोन देखने को मिले, ठीक है, ई आर, ओ आर, ठीक है, एन ई डबल एस, मैं बता भी दे रहा हूँ, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, टीचर, प्लेयर, मॉनिटर, लोनलीनेस, ये सारे नाउन हो जाते हैं. ठीक है. दूसरा एडजेक्टिव, क्योंकि कई बार हमें आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प हो जाता है. एडजेक्टिव के लास्ट में क्या आता है, आई वी आता है ना. तो जितने भी वर्ड जिसके लास्ट में आई वी ई आए वो एडजेक्टिव है. ठीक है. अगर उसके लास्ट में ए बी एल ई आ जा रहा है, कैपेबल, ठीक है, मेमोरेबल, ठीक है, तो वो क्या है, एडजेक्टिव. अगर आई बी एल ई आ जा रहा है तो वो क्या है, एडजेक्टिव. ठीक है. आई बी एल ई बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, कॉरिगेबल, इनकॉरिगेबल, या अगर एफ यू एल आ जाता है किसी भी वर्ड के लास्ट में, ब्यूटीफुल, फेथफुल, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव. एल ई डबल एस, ये क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव. अब यहाँ पर आते हैं एल वाई वाले वर्ड्स में. सो अगर नाउन में आप एल वाई वर्ड ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स व्हाट, एडजेक्टिव. और अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं, इट बिकम्स एडवर्ब. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ फ्रेंडली, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड, तो फ्रेंडली या तो एल वाई है तो या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा. तो अब आपको बताना क्या है. रिमूव एल वाई एंड देन थिंक. फ्रेंड, फ्रेंड इज नाउन, वेरी गुड. तो नाउन प्लस एल वाई, एडजेक्टिव. दिस इज एडजेक्टिव. I'm just writing 4-5 words and you have to just let us know orally. Mainly, manly, brotherly, cowardly, importantly. Yeah, there could be a lot more word. Faithfully. Yeah, just tell me the parts of speech of all these words. Mainly, manly, brotherly, cowardly, importantly, and yeah, and faithfully. Yeah, mainly is what? Adjective. So how is this adjective? L हटा सकते हैं तो वर्ड मेनली, यू आर लेफ्ट विद द वर्ड मेन. ठीक है. और अब मेन से आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है तो. ठीक है. मेन अप्लाई, मेन क्वेश्चन, है ना. तो क्वेश्चन नाउन और उसके लिए आ गया कैसा, मेन. तो मेन इज एडजेक्टिव, उसमें एल वाई लग गया, इट बिकम्स एडवर्ब. मैन इज नाउन, नाउन प्लस एल वाई, एडजेक्टिव. ब्रदरली, नाउन प्लस एल वाई, एडजेक्टिव. कोवर्डली, विल डिस्कस दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये गलत ही होगा. इंपॉर्टेंटली, important adjective या adverb. Faithfully, faithful, remove the ly word ना, and ful वाले सारे word adjective होते हैं, तो adjective plus ly becomes adverb. You're getting it? So अभी तक those who came late, I would like to give you a recap by saying कि today I started discussing functional grammar, which is how each and every word functions. So it's been around an hour, है ना, 1 घंटे हो गए. एंड वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग हाउ नाउन फंक्शंस, हाउ प्रोनाउन फंक्शंस, हाउ एडजेक्टिव फंक्शंस, हाउ एडवर्ब फंक्शन, एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई व्हेन वी आर गिवन अ चंक ऑफ सेंटेंस एंड वी आर आस्क्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है. तो डायरेक्टली यू आर नॉट आस्क्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज मोर, क्योंकि उसकी अनपैकिंग आप ज़्यादा अच्छे से. तो अप टू नाउ डिड यू अंडरस्टैंड, मतलब 3 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउन हमारा V4 की तरह भी काम कर सकता है. ठीक है. जिसे हम लोग वर्बल नाउन और जिरंड भी कह सकते हैं. वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, विच वी कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. यू आर गेटिंग इट. एंड देन एडजेक्टिव एंड देन एडवर्ब. चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उस बेसिस पे सबके लिए आसान हो जाएगा समझना वॉट एवर वी हैव स्टडीड. इफ यू वांट टू नोट डाउन एनी ऑफ द थिंग, जस्ट लेट मी नो. आई एम गिविंग यू 60 seconds. उसके बाद आई जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चंस. इफ यू फील लाइक नोटिंग इट डाउन, अदरवाइज वी कुड मूव अहेड. ठीक है. चलो. And this is for everyone. Please note it down.
This is horse. So you have to discuss the parts of speech of the underlined words. And yeah, he runs fast or fastly. I should have written like this and then ask you कि कौन सही है. अच्छा, he runs fast और he runs fastly, which is correct. अभी उस पे नहीं आते कौन क्या parts of speech है. He runs fast और he runs fastly. He runs fast. He runs fastly is wrong. Okay, so देखो यहाँ पे पहले तो फास्टली जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है. ही रन्स फास्ट, ऑलवेज रिमेंबर. दूसरा, फास्ट कैसे हो गया? क्योंकि ये वर्ब के बारे में बात कर रहा है, तो दिस बिकम्स एडवर्ब. अगर आप फास्ट को हटा दो और सिर्फ देखो ही रन्स, उसके मैनर की बात कर रहा है. MPTF वी जस्ट डिस्कस्ड, मैनर ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. ही रन्स फास्ट, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ा. लुक एट दिस सेंटेंस, ही इज अ फास्ट रनर, ठीक है. दिस इज व्हाट? आर्टिकल. इफ देयर इज एन आर्टिकल देयर हैज टू बी अ नाउन, ठीक है. और नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो ये फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो कैसे एक वर्ड कैन फंक्शन डिफरेंटली इन डिफरेंट सेंटेंसेस. और ज्यादा अनपैक तो रन भी वर्ब है ना. और हमने कहा था अगर हम उसमें ER या OR लगा देते हैं वर्ब में तो वो नाउन बन जाता है. टीच, टीचर, प्ले, प्लेयर. तो रन में हमने ER लगा दिया तो हमें एक एक्स्ट्रा एन भी लगाना पड़ा, रनर. और रनर क्या हो गया? दौड़ने वाला. तो वो नाउन हो गया और नाउन के बारे में बात कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हो गया. ही फास्ट ऑन एवरी मंडे, ऑब्वियसली, ठीक है. ये बड़ा आसान भी हो गया. और फास्टिंग वर्ड सुना ना आपने, तो फास्ट वर्ब की तरह भी काम करता है. और चूंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आ रहा है तो ये वर्ब बन गया. So this is what we study in functional grammar. We don't need to mark up lots of things. Just have to understand how. And then 10 seconds में ये हो जाएगा. He's running in the field. Running is a hobby. I saw. First one is. This is he is running. वो काम कर रहा है. Verb. क्या कर रहा है? दौड़ने का काम. He is running. This is verb. Running is his hobby. दिस इज वर्ब, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ. और अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट की तरह, या दिस इज नाउन. वेरी गुड. हाँ, यू आर ऑल्सो करेक्ट व्हेन यू से जिरंट, ठीक है. नाउन. आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, दिस इज आर्टिकल, हॉर्स इज व्हाट? नाउन. वेरी गुड. you understood how one word यानी V4 can act as a noun, can act as a verb, and can act as a noun, and can act as an adjective. Now he works hard and he is a hard worker. First में adverb, second. Very good. ठीक है, you have got it. So this is adverb because this is verb. And look, work verb है ना, थोड़ा वर्क ही है वो समझ लेना, हो गया. वर्क से वर्कर, तो उसमें ईयर लगा दिया तो वो नाउन बन गया. तो वर्कर नाउन, क्या था वर्कर? हार्ड वर्कर. तो दिस इज एडजेक्टिव. सो एक वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है और वही वर्ड एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है. आई एम जस्ट गिविंग 5 more questions which will be a fill in the blanks. ठीक है, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आस्क. और अब हम शुरू करेंगे जो जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. दैट वाज द डिस्क्लेमर टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर डन नोटिंग दिस, विल मूव अहेड. बट आई हैव द क्वेश्चन इन फॉर्म में निकाल लेता हूँ. दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड एज वेल ना, तो वर्बली कैन आई स्पीक वर्बली एज वेल? नहीं, स्पीड सबकी अलग अलग होती है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ. I should have the question. Yeah, I got it. Should I clean it? Or if any of you has any doubt, feel free to ask. Are you getting it? Ha, because I'm not teaching any rocket science, that's why you're not very attentive. ठीक है, चलो, I'm cleaning it up. All right. So you all need to write this question. This will be MCQ. ठीक है, whatever we have understood, we haven't discussed preposition, we haven't discussed conjunction, we haven't discussed other parts of speech. All we have discussed noun, pronoun, adjective, and adverb. And on the basis, and you will feel similarities how questions are designed in such a way that caters CUET students as well. And for passage, we'll come to passage as well. So I'm just going to write down the MCQ pattern. Children
below the age of 14 should, children below the age of 14 should okay, yeah, fine, be sent to school. And now you have 4 options. Let me read it. Compel, compulsive, compulsory, and then compulsorily. Okay, just come up with your answer. Children below the age of 14 should be sent to school. यानी 14 साल से नीचे के बच्चों को. Okay. Okay, first what you could do is, हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा वर्ड क्या है. पहला, यहाँ पे IVE है ना, तो ये क्या होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में IVE हो तो वो एडजेक्टिव होता है. दिस इज 99% करेक्ट. एक दो केसेस है और रिसीव जो कि वर्ब की तरह जिसके लास्ट में IVE आता है, बट दिस इज करेक्ट. कंपलसरी और कंपलसरीली, तो कंपलसरी भी जो होता है एडजेक्टिव है, इट इज कंपलसरी. ठीक है, और एडजेक्टिव में ly लग जाता है तो क्या बन जाता है वो, एडवर्ब. एंड दिस इज कंपेल. कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, वर्ब. तो ये तो हमें कैटेगरी मिल गए. अब हमें देखना है यहाँ पर क्या आएगा. तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी, दिस इज वर्ब एंड सेंट इज ऑल्सो वर्ब. ठीक है, उन्हें भेजना चाहिए, यही बात हो रही है ना. 14 साल से नीचे के बच्चों को अवश्य स्कूल भेजना चाहिए. ठीक है, तो वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा. तो वर्ब के बारे में जो बात करता है बिकम्स एडवर्ब. डू वी हैव एडवर्ब? यस. तो क्या होगा आंसर, कंपल्सरीली. कई बार आप पढ़ के भी ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो वैसे भी बन जाता है. इट आई अग्री विथ इट बट इट डजंट वर्क ऑल द टाइम. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना, ही इज बेटर देन आई, वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा बट वही सही था. सो उसको मेंटल ग्रामर भी कहते हैं, मेंटलिस्ट अप्रोच. ठीक है, तो देयर इज अ काइंड ऑफ ग्रामर स्टोर्ड इन आवर ब्रेन. आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस. वेरी फेमस चॉम्स्की, फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, ही हैज टॉक्ड अबाउट कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हाउ डज ही लर्न अ लैंग्वेज, हाउ डज ही अक्वायर अ लैंग्वेज. तो इसके ऊपर इतनी सारी थ्योरी है, और अमेरिकन जो लैंग्वेजिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत सारी थ्योरी उसके ऊपर बातें की. एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट कि पहले तो उन्होंने कहा बिहेवियरिज्म, क्योंकि पेरेंट्स जो बोलते हैं बच्चा उन्हीं को सुनता है, इमिटेशन होता है, उनको दोहराता है, उस तरीके से बात करता है. ही केम अप विद न्यू आइडिया एंड सेड नो नो नो, दिस इज नॉट द केस. अगर ऐसा है तो हम एनिमल्स को भी अपने साथ पालते हैं. इनफैक्ट पहले दिन से जब उसने जन्म लिया है वो तो हमारी तरह भाषा नहीं बोलता है. ही नेवर स्पीक्स, या एनिमल नेवर स्पीक्स, वो अपनी ही आवाज़ निकालता है. इनफैक्ट जितने भी एनिमल्स हैं, इनफैक्ट अफ्रीकन मंकीज 20 तरह के साउंड्स निकाल सकते हैं बट ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल सकते. जबकि 3-4 साल में, मैक्सिमम 5 years में, द चाइल्ड लर्न्स द कॉम्प्लेक्स ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज, वेदर इट इज हिंदी, वेदर इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इज बॉर्न. एंड देन ही सेज के देयर इज अ ग्रामर स्टोर्ड इन आवर हेड, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके बारे में उसने बात किया. और क्या उसी की वजह से वी आर एबल टू अक्वायर लैंग्वेज. एंड दिस इज लैंग्वेज इज वेरी ह्यूमन. It is only to human beings. Out of all the species found on planet Earth, it is very human. It is very, जिस तरीके से it's a biological gift to us. जैसे fishing, जैसे swimming is to fishes, जैसे climbing is to other animals, जैसे flying to birds, वैसे language is a biological gift to us. It is only given to human being, no other species. I'm writing another question, a very small question. I sensed the dash of argument. And your options are beautiful, beauty, beautification. Why is he correct? Be more. Yes, तो it needs a noun. ये तो हमें obviously beauty will be the right answer. अभी मैं error वाला भी देने वाला हूँ इसके बाद. अब यहाँ पे FUL देखेंगे, this is adjective, we need noun. FUL में double LY लग गया, this is adverb, we need noun. IUN, IUN भी noun है ना, जो के लास्ट में आया वो भी noun की तरह काम करता है. अब beautification का मतलब होता है सौंदर्यीकरण, किसी चीज़ को actually सजाना. ठीक है, फेस्टिवल से पहले घर को, तो ब्यूटिफिकेशन वो क्या लाएगा. लेकिन यहाँ पर ब्यूटी, आई सेंस द ब्यूटी, और आपने सेंस किया, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर आईज. ठीक है, इट्स नॉट इन कॉन्क्रीट पिक्चर. सो दिस इज व्हाई दिस इज द ब्यूटी. आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द ऑफ आर्ग्यूमेंट.
Third question will be an error detection, and fourth question will be an error detection. There's an error regarding this parts of a speech, and you have to identify it. Just a second, yeah. ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके. The angry man ran, hurried into crowd, and shouted. Shouted loud at the audience. Readable है ना? You have to detect an error in this sentence, and I'm writing one more sentence. They felt after care hurried has a problem. Okay. Shan, okay. Anybody else? Okay, let me tell you one more thing. We are very image conscious in the sense कि मुझे जवाब नहीं देना है, मेरा आंसर गलत होगा. Nobody is Chomsky over here. Chomsky is a great figure. Nobody is Delheims. Nobody is T.S. Eliot. Let me take the easier name. Nobody is a very Panini or the famous grammarian over here. So आप participate करो. This will let me understand के your current knowledge, current level of understanding, so that I could cater you accordingly, instead of just keeping mum. No, you have to identify, spot one word जो गलत यूज हुआ है. गलत इन द सेंस उसको गलत तरीके से लिख दिया गया है. ठीक है. तो द एंग्री मैन, दिस इज वेरी करेक्ट. आर्टिकल द, मैन इज नाउन, एंग्री इज एडजेक्टिव. द एंग्री मैन रैन, वर्ब. इतना तो क्लियर हो गया. दौड़ा, हरी तो सुना आपने, हड़बड़ी में, तेजी में. ठीक है, बहुत जल्दी में दौड़ा. इनटू क्राउड, भीड़ में. एंड, और देखो एंड कंजंक्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, तो कंजंक्शन सबसे वफादार होता है. इसने अपने पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया ना, रैन, तो बाद में भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया. ये एकदम बैलेंस करके चलता है. शाउटेड, चिल्लाया. चिल्लाने का तरीका है ना, मैनर, कैसे चिल्लाया, तेजी से. लाउड, लाउडली और लाउड. या एडवर्ब ly वर्ड होते हैं ना, तो लाउडली, एट द ऑडियंस. और यहां पर ये दो वर्ड में प्रॉब्लम है. ये हरीडली होगा और ये होगा लाउडली. या यू आर राइट इन सम सेंस. द एंग्री मैन रैन, दौड़ा. कैसे दौड़ा, हरीडली. अगर यहाँ पे हम रैन की जगह स्लोली भी लिख सकते थे. अभी हमने किया था ना, ही रन स्लोली. ठीक है, तो रैन हरीडली. ये और ये क्वेश्चन को 4 हिस्से में बांट दिया गया, एंड यू वर आस्क्ड टू फाइंड द एरर. तो व्हाट हेल्प यू टू डिकोड द क्वेश्चन और टू गेट टू द आंसर? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इजंट इट? सो यू हैव टू. चलो दूसरा वाला पोस्टमार्टम करो इस सेंटेंस. विल कम टू द आंसर. केयरफुली वाले सही जा रहे हैं. आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन. लुक, ION है. दिस इज व्हाट, नाउन है ना. He came to the conclusion, ये बिल्कुल सही है. He came to the conclusion, ये भी सही है. ION आर्टिकल के बाद आया, नाउन है. अब नाउन है, और नाउन के बारे में जो बात करता है, we call it what? Adjective. और इसमें हम आपको ये भी पता है, इस भी वर्ड के लास्ट में FUL है, वो एडजेक्टिव है. और इसमें लग गया है. एडजेक्टिव प्लस LY becomes what? Adverb. तो केयरफुल. Did you get it? More question like this? All right. Orally दे देता हूँ. नोट कर लो. I need 5 to 10 minutes of break, I think. लिखो, the buzz at the party, the buzz, BUZZ, the buzz at the party was that a famous film star and politician, a famous film star and politician would WOULD, would probable, PROBABLE, would probable drop, 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 for a while. Okay, it's okay, I can repeat it. The buzz at the party was, क्या है उसके बाद?
that a famous film star and that's all. Detect the error. Okay, तो उसको क्या सही कर सकते हैं? Probably. वेरी गुड, क्योंकि वुड एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद वर्ड आया ड्रॉप, और ड्रॉप के पहले जो वर्ड होगा वो वर्ब के लिए आएगा शायद, एडवर्ब. हाँ, बज मतलब कहते हैं एक एक तरह का टॉक, अचानक मतलब पार्टी में एक हलचल मच गई और वो भी बहुत साइलेंटली. ठीक है, सब आपस में फुसफुसा के, बज मधुमक्खी करती है ना वो आवाज़, वो फुसफुसा के बात कर लेगी कि अच्छा पॉलिटिशियंस आ रहा है या फेमस फिल्म स्टार. अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो वो जो वर्ड है प्रोबेबल, तो उसके लास्ट में क्या है? ABLE. सो ABLE इज व्हाट? एडजेक्टिव. अभी मैंने आपको लिखवाया था जिस भी वर्ड के लास्ट में ABLE और IBLE होता है वो एडजेक्टिव होता है, और वर्ब के लिए हमें चाहिए तो एडजेक्टिव में लगा दो, प्रोबेबली. गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, and all these questions have been asked. You can cross check it. The RBI, लिखो, the RBI is in the favor of, the RBI is in the favor of amending, is in the favor of, favor of amending, AMM. amend मतलब बदलाव करना होता है. amending currently policies governing the nation, policies governing the nation of, policies governing the nation of foreign banks in India, policies governing the nation of foreign banks in India. Yeah. How will you correct this? हाँ, तो एक तो आपके एग्जाम में बेनिफिट ये है कि you'll just have to ask to spot the error. You won't have to ask to correct it. ठीक है, कैट वाले एग्जाम में करेक्शन भी भूल लेते हैं, which becomes more difficult. ठीक है, तो करेंट पॉलिसीज क्या है? पॉलिसी, पॉलिसी वर्ड सुना ना आपने, है ना? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो पॉलिसी हमारा क्या है? एडजेक्ट. ऑनेस्टी, ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस तो आप सबने सुना, उस हिसाब से पॉलिसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए. You should write it down, otherwise you'll go wrong. Honesty is the best policy, लिख लो, and then tell me the parts of speech of the word policy. Oh my god, this is not going anyway. I thought you got developed eyes now. Oh. दिस इज आर्टिकल ना, या नाउन. पॉलिसी, आर्टिकल के बाद क्या वर्ड आ रहा है? पॉलिसी ना, ये. और कैसा पॉलिसी? बेस्ट. दिस इज एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, गुड, बेटर, बेस्ट. और पॉलिसी के बारे में बात करेगा तो क्या हमारे पास वर्ड आया? करेंटली. करेंटली था ना, करेंटली पॉलिसीज. तो ये तो नाउन है, और नाउन के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो ये तो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. तो ये ग्रामर के रूल के हिसाब से सही नहीं है. करेंट इज, सॉरी, करेक्ट इज करेंट. करेंट इंग्लिश ग्रामर है ना. करेंट अफेयर्स, तो अफेयर्स इज व्हाट? नाउन. और कैसा? तो करेंट अफेयर्स, तो करेंट इज एडजेक्टिव. गिव यू द लास्ट क्वेश्चन एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू ऑल डू करेक्टली. We have extensively discussed, we have extensively discussed with the participants, we have extensively discussed with the participants and obtained their feedback, and obtained their feedback regarding our services, and obtained their feedback regarding our services. We have extensively, क्या बोला मैंने? Discussed with participants and obtained their feedback regarding our services. Think hard. तो आपको क्यों लग रहा है डिस्कस गलत? कहाँ से गलत लग रहा है?
नहीं मैं कह रहा हूँ तो नहीं, यू शुड आंसर योर सेल्फ एज वेल. व्हाई डू थिंक डिस्कस गलत? मुझे लिख ही देना चाहिए वो क्वेश्चन. ओ माय गॉड, ये जा क्यों नहीं रहा है? We have extensively discussed with the participants. With da भी था क्या? हाँ कोई बात नहीं, कुछ ऐड नहीं करना है. With participants and obtained their feedback. हाँ, regarding our services and obtained their feedback regarding our services. All right. पहले डिस्कस पे ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है, तो डिस्कस वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैव और हैज़ के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. की टू रिमेंबर. ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सेंटेंस करते करते सीख सकते हैं. हैव हैज़ हैड के बाद हमेशा वर्ब. अब हैव क्यों आया? क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद हमारा प्लूरल वर्ब आता है. हम हैज़ नहीं लगा सकते ना, ठीक है. अब हैड भी लगाओगे तो सही है, और हैव में भी कहीं से गलत नहीं. डिस्कस इज व्हाट? वर्ब ना. तो वर्ब, वर्ब के लिए क्या आता है? एडवर्ब. आई वी वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब. तो यहां तक तो सही हो गया. विथ पार्टिसिपेंट्स, विथ इज प्रीपोजिशन, पार्टिसिपेंट्स नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इज कंजंक्शन, तो कंजंक्शन बैलेंस करता है. कंजंक्शन के पहले क्या आया है, बाद में क्या आ रहा है? वर्ब. तो पहले वाले वर्ब को देखेंगे. ये V3 है और ये भी V3 है, बिल्कुल सही. देयर फीडबैक, इट इज ऑल्सो करेक्ट. रिगार्डिंग आवर सर्विसेज, तो देयर इज नो एरर. तो नो एरर करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है. और ऑप्शन में नो एरर भी दे देते हैं. एंड कई बार ज्यादा सेंटेंस लगता है नो एरर, ठीक है. यू गॉट इट. हाउ टू उस लेंस से, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेंस से देखेंगे हर वर्ड्स को, तो ये हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो अभी मैं लास्ट एक और चीज बताने वाला. दिस विल अनदर 10 मिनट्स एंड देन विल टेक अ गैप एंड देन विल कम बैक फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो क्लैट में पूछते हैं और CUET में पूछते हैं. क्लैट ही ना, या मैं कैट तो नहीं बोल रहा हूँ. और इससे क्वेश्चन देंगे, और इससे कई सारे क्वेश्चंस आते भी हैं. अरे यार, दिस इज ट्रिपल A. This is called adjective, adverb and abstract noun. They look very similar. Adverb and abstract noun. ठीक है. अब देखो, अगर मैं एक वर्ड लेता हूं एडजेक्टिव में, ऑनेस्ट, ठीक है. ऑनेस्ट, इसका एडवर्ब बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एलवाई लगा दो, तो बड़ा इजी हो गया है. एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो, एडवर्ब बन जाता है. हमेशा नहीं है, लेकिन हाँ 90-95% ऐसा ही होता है. कुछ कुछ है जो दोनों काम करते हैं. ऑनेस्टली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी. अब कैसे पता चलेगा? तो ही इज ऑनेस्ट, ही वर्क्स ऑनेस्टली, ठीक है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो ऑनेस्टी अभी हमने शुरू में, जब मैं इंटर किया था इसको में, तो हमने डिस्कस किया था कि ऑनेस्टी, सॉरी, हमने डिस्कस किया था कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा. ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे नाउन, और नाउन काम करता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. एडवर्ब, एडवर्ब काम करेगा तो या तो ये वर्ब के लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए आएगा, या अनदर एडवर्ब के लिए आएगा. और एडजेक्टिव है तो या तो ये नाउन के लिए आएगा या प्रोनाउन के लिए आएगा. लुक एट द वर्ड पुअर. हाँ बताएं. वाइज, मैं बस इधर लिख रहा हूं, आपको उधर बताना है. एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कोवर्ड. पुअर का क्या होगा? एलवाई लगा दो, पुअरली. यस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो पुअर तो एडजेक्टिव भी है. पॉवर्टी. और एक और होता है द पुअर, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये होता है कॉमन नाउन. तो अगर आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा लगा देते हो तो वो पूरा कॉमन नाउन, द रिच, द पुअर, द वाइज, द ब्रेव, ये सारे कॉमन नाउन बन जाते हैं. इसीलिए इसको अलग से रख दिया. वाइज का क्या होगा? वाइजली. और इधर क्या होगा? विजडम. अब हमें कॉवर्ड का बताना है. हाँ, तो पहले तो सबसे पहले ये बात मैं बता दूं, कॉवर्ड जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है. कोवर्डली एडजेक्टिव होता है. ये आप
कहीं पे नोट कर लो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द ओनली एडजेक्टिव विच लुक्स लाइक एन एडजेक्टिव, लेकिन ये होता क्या है? नाउन. कॉवर्ड का मतलब होता है कायर, बुजदिल, एंड दिस इज नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव. तो इसमें ऑलरेडी एल वाई लगा हुआ है, ठीक है. तो अब इसको एडवर्ब कैसे बनाएंगे? कॉवर्डली एडजेक्टिव है, अगर उसे एडवर्ब बनाना होगा तो नहीं. तो हम लोग चेंज करते हैं कैसे? जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है ना, एडजेक्टिव है, फिर ब्यूटीफुली कर दिया, तो मोर और मोर ब्यूटीफुली या मोर कोवर्डली ये कह के बनाएंगे, लेकिन उसको अभी खाली रखेंगे और इधर होगा कोवर्डाइज. अब मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूं. ही इज कॉवर्ड, ही इज ए कॉवर्ड, और ही इज a coward boy. You have to tell me which one is correct and which one is wrong and why. That is more important. सेकेंड वन सही है. पहले गलत कौन है वो बता दो. थर्ड वाला गलत है, क्यों? अच्छा ठीक है, सेकेंड गलत है, ओके. और थर्ड थर्ड में कुछ कहेंगे आप? पहले आपको ये बताओ कॉवर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इतनी हड़बड़ी में रहने की जरूरत नहीं है. नाउन, ठीक है. अब इस तरीके से हमने, ऐसे तो है ये नाउन और बस लिख दिया है ही इज कॉवर्ड, तो ऐसा नहीं लग रहा ही के बारे में बात हो रही है. ही इज व्हाट? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करने वाला बन जाता है एडजेक्टिव. तो ये तो पूरा गलत जा रहा है ना. प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है तो इसको होना चाहिए तो एडजेक्टिव, लेकिन ये तो है नाउन. इसीलिए कॉवर्ड में हमेशा नाउन आप याद रखें. अब ही इज ए कॉवर्ड, और आर्टिकल के बाद तो नाउन आता ही है ना, एंड दिस इज करेक्ट. यहां देखो ही इज अ कॉवर्ड बॉय, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दो नाउन एक साथ क्यों लाएंगे? तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, प्लस और क्रॉस वाला, ताकि इजी हो जाए. फिर से समझिए, कॉवर्ड नाउन है. ही इज बॉय, आप बोलेंगे कभी ही इज ए बॉय, क्योंकि बॉय नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल लाना देना होगा, है ना. तो ही इज ए कॉवर्ड करेक्ट हो गया ना. और मैं आपको ये भी कह रहा हूं, प्लीज गो क्रॉस चेक, गूगल इट, वट एवर यूर टॉट. आपको जो भी सर्व किया जाता है ले मत लीजिए बिकॉज इट इज करेक्ट, ठीक है. पीपल माइट गो रॉन्ग एंड आई एम डैम श्योर आई एम नॉट, बट अगेन आई एम आस्किंग यू टू गो थ्रू इट, ठीक है. यू ऑल हैव डिजिटल डिवाइसेस. ही इज कॉवर्ड, ठीक है. तो ही इज कॉवर्ड, दिस इज व्हाट? रॉन्ग. और ही इज अ कॉवर्ड बॉय, ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये भी नाउन और ये भी नाउन, और नाउन के बारे में अगर दूसरा नाउन आएगा डजंट मेक सेंस. नाउन के बारे में हमें बात करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो इसको करेक्ट करेंगे तो ऐसे बोलेंगे ही. नाउ यू गेट इट, कोवर्डली इज व्हाट? एडजेक्टिव, है ना. और आया ना नाउन के लिए, ही इज अ कोवर्डली बॉय. हाँ, यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. लेट मी आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस इफ आई कुड गेट, अदरवाइज. Okay, we have a word kind. हाँ, kind is what? हाँ, and what will be the adverb of it? And then abstract noun. Yeah, confident. Okay, and noun, confidence. तो NANC वाला जितना भी वर्ड है वो सारे नाउन ही होते हैं. जैसे important. Important क्या होगा इसका? Importantly. और abstract noun? Importance. Do we have some more word? Happy. सैड, सैडनेस. सो अब ये तो है बड़े आसान. अब ये वर्ड आपकी नजरों से गुजरेंगे तो you'll understand, अच्छा ये नाउन है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडवर्ब है. सो वट एवर वी हैव स्टडीड, वी हैव जस्ट स्टडीड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एंड दैट टू वेरी वेरी ओवरव्यू काइंड ऑफ थिंग. नाउन पे तो हफ्ते लेक्चर चल सकते हैं, उसके एक एक पार्ट्स के बारे में बात करूँ, और पूरा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, बहुत डिटेल में वी कैन डिस्कस. आई जस्ट डिस्कस द ओवरव्यू. आई जस्ट डिस्कस्ड कि अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पे दिखता है वो नाउन या प्रोनाउन होगा, दैट्स ऑल. फिर हमने डिस्कस किया कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है. नाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में सेम रहता है, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है. इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं एग्जाम वाले और इससे सवाल बना देते हैं. हमने आपको 3-4 सवाल भी दिया कि ही नोज यू बेटर देन आई एंड मी, ही इज बेटर देन आई एंड मी, लेट रवि एंड आई एंड मी इंटर द रूम, and there was one more question regarding this. Then we talked about adjective. Adjective talks about noun or pronoun. It could also be in the form of V4 and V3. V4 को हम present participle कहेंगे और V3 को past participle कहेंगे. We also talked about adverb. Adverb talks about verb, adverb and adjective. And जितने भी ly वाले words होते हैं वो mostly adverbs होते हैं. Noun में ly लगा देते हैं, it becomes adjective. Adjective में ly लगा देते हैं, it becomes adverb. And then I made you solve some of the questions. So we is this the time of taking a break? What time do we take a break? 3 only. All right, so we'll be back after half an hour.
you.